تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کلوا کرتی حلقہ اسمبلی کے کرتال پولیس اسٹیشن کی جدید عمارت کا افتتاح انجام دیا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت کی افتتاحی تقریب سے مخاطب ہوتے وزیر داخلہ نے کہا کہ تلنگانہ پولیس اسٹیشنوں کی عمارتوں کو دیکھ کر دیگر ریاستوں کی عوام کارپوریٹ دفاتر اور 5 ستارہ ہوٹل سمجھ رہی ہیں، کیونکہ حکومت تلنگانہ جدید پولیس اسٹیشنز کو جدید سہولیات سے لیس عمدہ اور پرکشش طریقے سے تعمیر کروا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمارتیں کسی بھی کارپوریٹ دفاتر یا پھر 5 ستارہ ہوٹلوں سے کم نہیں ہے، جبکہ تشکیل تلنگانہ سے پہلے پولیس اسٹیشن کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہوا کرتی تھی۔ ہوم منسٹر نے کہا کہ افتتاح کی گئی عمارت کو 9000 مربع گز اراضی پر تمام جدید سہولیات کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور 2 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی متحرک پولیس اپنی فرض شناسی کے علاوہ سماجی خدمات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اسی لیے تلنگانہ پولیس کو ملک بھر میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کارپوریٹ سطح کی پولیس اسٹیشن عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں، جس میں عوام کی سہولیات کے لیے تمام تر انفراسٹرکچر مہیا کروایا گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس فرینڈلی پولیسنگ کے لیے ملک بھر میں اہم مقام رکھتی ہے۔ ہوم منسٹر نے کہا کہ قیام تلنگانہ کے بعد سے تلنگانہ پولیس نے عوام کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا ذکر کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ یہ ایک بین الاقوامی طرز کا سینٹر ہے جو ملک بھر میں پہلی مرتبہ حیدرآباد تلنگانہ ریاست میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سینٹر کی تکمیل سے محکمہ پولیس کے علاوہ دیگر متعدد محکمہ جات کو بھی اس سے مربوط کرتے ہوئے اعلیٰ خدمات حاصل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے ہی اس سینٹر میں تلنگانہ اینٹی نارکوٹکس بیورو اور تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ محمد محمود علی نے کہا کہ قیام تلنگانہ کے بعد سے حکومت نے امن و امان کی برقراری اور بہتر کارکردگی کے لیے 7 نئے کمشنریٹ، جن میں رچا کونڈا، ورنگل، سدی پیٹ، کریم نگر، راما گنڈم، نظام آباد اور کھمم شامل ہیں، قائم کیے ہیں۔ سائبرآباد پولیس کمشنر اسٹیفن رویندر اور ان کی پوری ٹیم کو بھی ہوم منسٹر نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں کلوا کرتی ایم ایل اے گرکا جے پال یادو، شمشاباد ڈی سی پی نارائن ریڈی کے علاوہ بیاس کے قائدین، پولیس افسران و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ BRS-MLC کی کویتا نے کہا کہ ہندوستان میں خواتین ریزرویشن ایکٹ کے تحت مستقبل میں خواتین کے لیے بہترین دن آئیں گے۔ لندن میں برج انڈیا کے، جو کہ ایک سرکردہ عوامی پالیسی ادارہ ہے، زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ خواتین کے تحفظات، جمہوری عمل میں خواتین کی شرکت کے عنوان سے منعقد اس کانفرنس کو BRS کی رکن قانون ساز کونسل کی کویتا نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے خواتین کے ریزرویشن کا انقلابی بل منظور کیا ہے، جو مزید خواتین کے قانون ساز اداروں میں داخل ہونے کی راہ ہموار کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں 78 خواتین MPs ہیں اور ریزرویشن کے بعد ان کی تعداد 181 تک پہنچ جائے گی۔ BRS رہنما نے خواتین تحفظات بل منظور کروانے میں وزیر اعلیٰ KCR کی کوششوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ BRS پارٹی کے MPs نے کئی مواقعوں پر اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ KCR نے وزیر اعظم کو مکتوب بھی روانہ کیا۔ انہوں نے خواتین کے ریزرویشن میں OBC خواتین کے لیے کوٹے کی کمی کو تشویش کا باعث بتایا اور OBC خواتین کے انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ کانفرنس میں شریک مقررین نے سیاست میں خواتین کی نمائندگی بڑھانے کے لیے کی کویتا کی جانب سے کی گئی کوششوں کو سراہا۔ برج انڈیا نے خواتین تحفظات کے لیے کی کویتا کی کاوشوں پر ایک ویڈیو بھی پیش کیا۔ How are we making sure, because I've seen Manjuji mention about many communities, that representation of women from all those communities is there or not?
For example, in India, in this bill, OBC community representation is missing. So I believe OBC community representation also should be added in this bill. We will, of course, fight it out in our own country, but other than that, this is a wonderful first step for women. This is something that will affect the world in a greater way, because we are 70 crore women. We are getting a chance now to get up there, go to the parliament, get up there, stay in the assembly to make laws that will strengthen our democracy. So I'm very happy that this has happened. I, in a very small, tiny way, was able to contribute to it, and I'm very glad that I got attached to this cause. I could do my bit, and all the political parties, all the leaders, especially my leader, KCR Garu, has been very, very, very inspirational and very pivotal in making sure that this bill passed, because not only now, 10 years back he gave his commitment. 10 years back we passed a resolution in our state assembly asking the central government to pass the 33% women's reservation bill, and today it has become a reality. We will make sure the bill touches the lives of every women from every strata. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि जब रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस का इंतखाबी मंशूर सामने आएगा तो अपोजिशन जमातों को धक्का पहुंचेगा। हरीश राव ने मंचियाल जिले के हाजीपुर मंडल में 80 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पड़तनपल्ली लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर इस बात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि पेंशन में कितना इजाफा किया जाए। बीआरएस का मंशूर बहुत जल्द आ रहा है। कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस का लड़ाई का कल्चर है और वो वोट पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हरीश राव ने इंकशाफ किया कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से पैसे लाकर तेलंगाना में जीतने का ख्वाब देख रही है, लेकिन जब तक सीएम केसीआर हैं कांग्रेस का खेल नहीं चलेगा। उन्होंने केसीआर दौरे हुकूमत में खुशहाली, कर्फ्यू जैसे मसाइल न होने और रियासत में पुरअमन माहौल होने का जिक्र करते हुए यकीन जाहिर किया है कि तेलंगाना में बीआरएस ही अपनी कामयाबी की हैट्रिक करेगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अनीसुल गुरबा की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद आइमा व मौज़नीन को एजाज़िया जारी करने का ऐलान और हज हाउस से मुत्तसिल इमारत के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अनीसुल गुरबा की शानदार इमारत का इफ्तिताह अमल में आया है। वाज़ेह है कि ये इमारत 4500 मुरब्बा गज अराज़ी पर 20 करोड़ रुपये के सरफे से तामीर की गई है। अनीसुल गुरबा की इफ्तिताह के बाद हज हाउस नामपल्ली के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 7000 आइमा व मौज़नीन को एजाज़िया स्कीम में शामिल किया गया। दरियासना हज हाउस की इमारत से मुत्तसिल इमारत के तामीरी कामों का इफ्तिताह भी हुआ। आपको याद दिला दें कि हुकूमत ने हज हाउस से मुत्तसिल इमारत की तकमीली के लिए 23 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। इस मौके पर AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी के अलावा शेखुल जामिया निज़ामिया, मुफ्ती खलील अहमद, बीआरएस के कई कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम अक़लियतों बशमूल मुसलमानों की फलाह व बहबूद की पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों को मुख्तलिफ स्कीमें और फ़वाइद मुहैया करवा रही है, जिसमें स्कॉलरशिप, रिहाइश और रोज़गार के मौक़े शामिल हैं। के ईश्वर ने ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से रियासत में 7000 इमामों और मौज़नों को 2500 रुपये माहाना अज़ाज़िया फराहम किया जाएगा। AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अवाम से मुखातिब करते हुए मुस्लिम अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए बजट की तफसीलात बताई और असम्बली में अपनी नुमाइंदगी पर पिछले 10 सालों में होने वाले कामों को भी तफसीली बयान किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में तमाम अक़लियतों की तरक्की के लिए अनथक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अक़लियतों बशमूल मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और जैनों को मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए फ़वाइद मुहैया करवा रही है। होम मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में अमन व अमान और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है और अक़लियतों के साथ किसी किस्म का इम्तियाज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से वक्फ बोर्ड का ताउन करने और रियासत में अक़लियतों को मुख्तलिफ स्कीमात और सहूलियात मुहैया करवाने पर शुक्रिया अदा किया। अनीसुल गुरबा की इमारत का इफ्तिताह और आइमा व मौज़नीन के लिए एजाज़िया का ऐलान हुकूमत तेलंगाना के खुश आइन इक़दामात में से एक समझा जा रहा है। तवक्को है कि इन इक़दामात से रियासत में अक़लियतों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मज़ीद मदद मिलेगी। टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ AIMIM कायदीन असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से किए गए तबसरों की मजम्मत की है। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी को RSS का लीडर कह रहे हैं और भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आकर कसम खाने को कह रहे हैं। वो और उनके भाई को भी मक्का मस्जिद में आकर ये कसम खानी चाहिए कि वो बीजेपी के एजेंट्स नहीं हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि रेवंत रेड्डी RSS से वाबस्ता थे, ताहम उनके नजरियात को देखते हुए वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को तरक्की से मुताल्लिक़ बात करनी चाहिए। AIMIM सदर की जानिब से मजलिस के उम्मीदवार को मजबूत करने और जहां मजलिस के उम्मीदवार नहीं हैं वहां मामू यानी KCR की हिमायत करने पर सैयद निजामुद्दीन ने पूछा है कि मुसलमानों को BRS को क्यों वोट देना चाहिए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि साल 2004 से साल 2013 तक मजलिस पार्टी कांग्रेस की हिमायती रही है और अब जबकि इलेक्शन करीब हैं कांग्रेस पार्टी को गालियां दी जा रही हैं। टीपीसीसी कायद ने इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने पर कहा कि ये काम 5 साल पहले किए जाते तो तामीर अब तक मुकम्मल हो जाती थी। उन्होंने मुसलमानों को पैगाम दिया है कि वो AIMIM और BRS की चिकनी चुपड़ी बातों में न आए। सैयद निजामुद्दीन का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन पुराने शहर में शफाफ तरीके से इंतखाबात कराए तो AIMIM की शिकस्त यकीनी है और मजलिस की जानिब से राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर लगाए गए इल्जामात मजलिस के अदम तहफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करते हैं। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिले महबूबाबाद के कोवरी मंडल मरकज में तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद अंजाम दिया। सत्यवती राठौड़ ने तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि जिस इलाके में उनकी पैदाइश हुई है वहां की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करना एक अहम कदम है और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। ये बात कहते हुए वो जज्बाती होकर रो पड़ी। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान गुज़िश्ता हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस इलाके को तरक्की न देने से बहुत सी मुश्किलात पेश आई है। साबिक़ा हुक्मरानों की जानिब से पुल न बनाने से कई लोग जान की बाजी हार गए हैं। वजीर ने कहा कि CM KCR ने इस इलाके की तरक्की के लिए 450 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। उन्होंने वजीर की जिम्मेदारी सौंपने और उनके इलाके की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करने पर वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया है। वजीर ने बताया कि हुकूमत ने बदकम्मा त्यौहार को रियासती त्यौहार के तौर पर तस्लीम किया है और इस साल हुकूमत की जानिब से 500 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 1 करोड़ खवातीन को बदकम्मा त्यौहार के मौके पर साड़ियों का तोहफा दिया जाएगा। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 44 मुख्तलिफ साइबर क्राइम केसों के मुतासरीन को 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा रकम वापस कर दी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर की रहनुमाई में और मुतादिद तहकीकाती और मालियाती इदारों के ताउन से साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर जराइम के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाते हुए कुल 2 करोड़ 23 लाख 79,575 रुपये हवाले किए हैं। वाज़ेह है कि साइबर जराइम का शिकार अफराद को रकम लौटाने में साइबराबाद पुलिस की जानिब से पहल की गई है और स्टीफन रविंदर की हिदायत पर ओहदेदारों ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए अदालत के हुक्म के मुताबिक
मुतासरीन के खातों में रकम जमा करवा दी। बीजेपी के रियासती दफ्तर का घेराव करने वाले यूथ कांग्रेस लीडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी की जानिब से एआईसीसी रहनुमा राहुल गांधी का मवाजना रावण से करने पर कांग्रेस कैडर में नाराजगी पाई जा रही है। रंगारेड्डी जिले के यूथ कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी के बारे में कही गई बात की मुखालिफत में बीजेपी के रियासती दफ्तर वाक़े नामपली का घेराव किया। दरियासना पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एहतजाज में रंगारेड्डी जिला सदर रविकांत गौड़, सेक्रेटरी कार्तिक कुमार के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। शहजादा मुकर्रम जा बहादुर मरहूम की 90वीं में पैदाइश के मौके पर मुकर्रम जा स्कूल की जानिब से फाउंडर्स डे मुनक़िद करते हुए निज़ाम की तालीमी खिदमात को खिराज पेश किया गया। शहजादा मुकर्रम जा बहादुर मरहूम की 90वीं यौम विलादत के मौके पर मुकर्रम जा स्कूल ने फाउंडर्स डे का एहतमाम किया और आसिफ जा शशुम, नवाब मीर महबूब अली खान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता वार्डरोब का HEH निज़ाम म्यूजियम पुरानी हवेली पैलेस में AK खान IPS रिटायर्ड के हाथों इफ्तिताह भी अमल में लाया गया। इस म्यूजियम की हाल ही में तज़य्युन की गई है। 2 वार्डरोब्स हैं जो कि एक दूसरे के मुतवाज़न हैं और दुनिया के तवील तरीन वार्डरोब्स तस्लीम किए जा चुके हैं। हर एक वार्डरोब 176 फीट तवील है और बर्मी सागवान से बनाए गए हैं। फाउंडर्स डे में AK खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से और शाम मोहन, चेयरमैन फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल पीस, एमिरेट्स क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया व साबिक सदर हैदराबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। ट्रस्टीज मुकर्रम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग MA फैज़ खान और फैज़ बिन जंग ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए AK खान ने निज़ाम हैदराबाद की तालीमी मैदान में खिदमात और सेक्युलर बुनियादों पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालते हुए बताया कि जिस दौर में दूसरे रजवाड़े अपनी जागीरात और महलात को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर रहे थे, निज़ाम हैदराबाद ने तालीमी मैदान में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी। हैदराबाद को तरक्की याफ्ता रियासतों में शामिल किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज़ भी बनाया। उन्होंने निज़ाम की तारीख को मसख़ करके पेश करने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो एक दूरअंदेश और सेक्युलर हुक्मरान थे। AK खान ने मुकर्रम जा स्कूल के मियार की सताइश करते हुए तलबा को तलकीन की कि वो लिखने की आदत डालें, अपने कलम से अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करें। मेहमान एजाज़ी शाम मोहन ने भी मुकर्रम जा स्कूल के मियार तालीम की तारीफ की है और कहा है कि हैदराबाद के तहजीबी और तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए स्कूल कायम किया गया है। नवाब फैज़ खान ने भी तलबा और मीडिया से मुखातिब करते हुए बताया कि पुरानी हवेली की हदूद में IT इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। स्पोर्ट्स की सहूलतें जिनमें कोचिंग और ट्रेनिंग भी शामिल है फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि नवाब वाला शान मुकर्रम जा बहादुर ने पुरानी हवेली को जो 8 महलात और मसरत महल और कई जायदादों पर मुश्तमिल है तालीम और हुनर सीखने के लिए वक्फ किया है। नवाब फैज़ खान ने तलबा के तालीमी मुजाहरे पर इत्मीनान का इजहार किया है। दरियासना प्रिंस मुकर्रम जा बहादुर को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। हैदराबाद शहर के मेहदीपट्टनम चौराहे पर TDP सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए TDP कायदीन ने खामोश एहतजाज किया। तेलंगाना TDP के सदर कासानी गणेश्वर मुदिराज की हिदायत पर TDP रियासती अक़लियती जनरल सेक्रेटरी सैयद मतीन अहमद, नामपल्ली कोऑर्डिनेटर बालकृष्णा
ویرا و دیگر قائدین نے نارا چندر بابو نائیڈو کی غیر قانونی گرفتاری پر نامپلی اسمبلی حلقے کے مہدی پٹنم چوراہے پر خاموش احتجاج درج کروایا اور ان کی جلد از جلد رہائی کی مانگ کی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ٹی ڈی پی سربراہ سکلز ڈیولپمنٹ اسکیم میں ملوث پائے جانے پر راجمندری جیل میں محروس ہیں اور ان کی عدالتی تحویل میں بار بار توسیع کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں ایک ہاتھی کے حملے میں محمد شہباز نامی نوجوان کی موت ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمد شہباز گزشتہ 2 سالوں سے ہاتھیوں کے انکلوژر میں کیپر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ہفتے کے روز شہباز پر ایک ہاتھی نے اچانک اس وقت حملہ کر دیا جب وہ ڈیوٹی پر مامور تھے۔ عام طور پر ایک انکلوژر میں 5 سے 6 افراد کو تعینات کیا جاتا ہے، لیکن ہفتے کے روز زو پارک کی 60 سالہ تقریب کی وجہ سے دیگر افراد مصروف تھے اور صرف شہباز ہی ڈیوٹی پر تعینات کیے گئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ ہاتھی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے شہباز کو زمین پر گرانے کے بعد انہیں پیروں سے کچل دیا۔ اس حملے میں شہباز شدید زخمی ہوئے۔ انہیں فوراً DRDO اپولو اسپتال لے جایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے ان کے فوت ہو جانے کی تصدیق کی۔ نہرو زولوجیکل پارک کے حکام نے ہاتھی کے حملے کی تحقیقات کے لیے حکم جاری کیا ہے اور پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی ہے۔ جنگاؤں ضلع میں مومن یو ٹرسٹ کے زیر اہتمام جلد سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص میں جنگاؤں مستخر میں 6 اکتوبر کو بعد نماز مغرب مومن یو ٹرسٹ کے زیر اہتمام جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرہ بمقام ایک مینار مکہ مسجد عمل میں لایا گیا۔ جمال شریف ایڈوکیٹ، رافع متین ایڈوکیٹ، شاہنواز ترک الہی، محمد آصف نے جلسے کی نگرانی کی۔ ڈاکٹر انیس صدیقی، سابقہ پرنسپل اسلامیہ کالج ورنگل، BRS قائد عارف، مولانا مفتی محمد زکریا، مولانا فصیح الاسلام، مولانا شاکر حسین، مولانا عبدالرشید، خالد سعید ناظم ضلع جنگاؤں جماعت اسلامی ہند کے علاوہ اطہر صدر کمیٹی مدینہ مسجد، مجیب الرحمان کرسپونڈنٹ BEd کالج جنگاؤں کے علاوہ سابق میونسپل کونسلر اعجاز کے علاوہ جنگاؤں کے علماء و مشائخین اور نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دریں اثنا وحید گلشن و دیگر کی جانب سے نعت کلام پاک پیش کیا گیا اور جمال شریف ایڈوکیٹ کے شکریہ پر جلسے کا اختتام ہوا۔ آنکھوں کے مختلف امراض میں مبتلا افراد کے لیے شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں 8 اکتوبر سے 3 روز تک آئی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر SN حسین MD UHS وہ سینئر کنسلٹنٹ کی زیر نگرانی اناپورنا ہوٹل روبرو BSNL دفتر نامپلی میں 3 روزہ آئی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز 8 اکتوبر سے ہوگا اور یہ 10 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ ایسے افراد جو امراض چشم میں مبتلا ہیں یا پھر رات کے اوقات میں ان کی بینائی متاثر ہوتی ہے، اس آئی کیمپ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر SN حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی کیمپ کے انعقاد اور امراض چشم کے مختلف اقسام اور طریقہ علاج سے واقف کروایا۔ گلوکوما ایک ایسا بیماری ہے جس میں لوگ آہستہ آہستہ اپنی نظر کو بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ جب ایک مرتبہ گلوکوما آتا ہے تو 5 سال کے اندر وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکل میں
ड्रॉप्स दिए जाते हैं, हर 6 घंटे में एक मरतबा ख़तरा डाला जाता है। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बिला आखिर 5 साल के बाद में वो अंधा हो जाता है। जब वो अंधा हो जाता है तो इसको इरिवर्सिबल नाम का एक वर्ड दिया जाता है, जो नामुमकिन है कि उसको रोशनी वापस आए। यूनानी मेडिसिन के अंदर ऐसी कुछ खास दवाई है जो इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बनाती है सिर्फ 30 दिन के अंदर। दूसरा स्क्विंट है, बच्चों में बहुत कॉमन है। बगैर ऑपरेशन के 30 दिन के अंदर स्क्विंट को यूनानी मेडिसिन के ज़रिए ठीक किया जाता है। इसके अलावा एक और बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप शाम के वक्त में उसको जो ना नज़र नहीं आता। आँख की साख्त के अंदर रेटिना नाम की एक जो ना परत होती है, जिसके अंदर रॉड एंड कोन्स 2 किस्म के खली होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का ताल्लुक रॉड सेल से है, जो लाइट की कमी की वजह से वो देखना बंद कर देते हैं। यूनानी मेडिसिन के अंदर बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के दवा मौजूद है, जिससे 30 दिन में नाइट ब्लाइंडनेस हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई। गाजा से इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। गाजा से रॉकेट हमलों के बाद तल अवीव समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे हैं। तल अवीव के इलाके में भी अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक गाजा के रॉकेट हमलों में एक खातून मारी गई है, जबकि इसराइली हुकाम का दावा है कि हमलों में खातून समेत 4 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली वज़ारत दिफा का कहना है कि अस्करियत पसंद गाजा से इसराइली इलाकों में घुस आए हैं। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि इसराइल पर 5000 रॉकेट दागे गए हैं और कई इसराइली इलाके उनकी जद में आए हैं। इसराइली फौज ने जंगी हालात का अलर्ट जारी किया है और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास भी मुनक़िद किया गया है। आपको याद दिला दें कि इसराइल ने साल 2007 से गाजा का मुहासरा कर रखा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।